guys, and welcome to this last episode of Series 1 on Audit Ki Pathshala with CA Meera Joisher. What we talk about today is the cleaning of books and accounts. कई बार ऐसे items accumulate हो जाते हैं financials में which are not required, and mind it, always it is not immaterial. तो सफाई जरूरी है. Please watch till the end because that will help you reap the entire benefits. Like and share with your friends who are into audit because it will help them a lot and ensure that they subscribe too. So without wasting much time, let us begin. Cleanup of books. Cleanup of books is generally required in many cases, but here I've identified 5 prominent ones which are observed in most of the companies and are very easy to identify. Going to the first one, that is the tax payment vis-a-vis the tax provision. See, under your current liability, that is on your liability side, you might find several years of such provision for taxes, and at the same time under the current assets, you find these TDS, advanced taxes, under the current assets. Well, both of these either can be netted off, one. Secondly, if at all not even netted off, will be required only in those cases wherein the assessment is pending. Now, for all these 4 years, it is not necessary that the assessment would be pending. Go to the income tax website and check out which are those years where these assessments are pending, and only in those years these amounts should and would remain outstanding. And if they are not eliminated, both my liabilities and my assets are overshot, and my asset position and my financial position looks very healthy, but actually it is not. Going to the second one, that is my provisions vis-a-vis the expenses. You might find such kind of amount standing in your financials. I have shown here only for 1 year, but many a times you find this provision, even if not identified like this as per the year, you might find huge amount standing here, which if you dig deeper, will find that relate to maybe 2 years, 4 years. Every year, once this provision was made, in the subsequent year, when the expenditure really happens, यानी क्या होता है कि आप जब वो expense कर रहे हो, मर्केंटाइल बेसिस पे मार्च में आपने कुछ प्रोवाइड किया, सिम फरवरी मार्च के कोई एक्सपेंसेस थे उस साल में नहीं, नेक्स्ट ईयर में पे हुए, तो उन एक्सपेंसेस को आपने प्रोवाइड किया और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में जाके खड़ा रहा. नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में जब आप उसको पे करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं. या तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट जो मेरा है डायरेक्टली उसी के सामने मैं एंट्री पास करूं, कैश, बैंक, पार्टी जिस हिसाब से आपने पेमेंट किया है, या फिर एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड आपने प्रोविजन एंट्री मारी, उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में आप एक रिवर्सल एंट्री मार दीजिए, जैसे कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस. अब ये करने से मेरे प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस करंट ईयर में रिवर्स हो गए, एंड जब जब मैं एक्सपेंस को डेबिट कर रही हूं उसके सामने वो ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो गए. सच बैलेंसेस फिर मेरे बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे. अब ये नहीं करने से अगेन जैसे मैंने बोला, मेरे एक्सपेंसेस भी ओवरशॉट है क्योंकि ये प्रोविजन एक्चुअली वो एक्सपेंसेस उस साल के नहीं थे, प्रीवियस ईयर के थे, एंड लायबिलिटीज भी ओवरशॉट है, विच इज अ नॉट ट्रू एंड फेयर पोजीशन, और इसीलिए ये करना जरूरी है. द थर्ड वन, दैट इज माय प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब प्रीपेड एक्सपेंसेस में आप यहाँ देखोगे करंट एसेट में ऐसा कोई अमाउंट खड़ा है, प्रीपेड एक्सपेंस फॉर फलाना ईयर. Here I've kept it as say 500 rupees for any of this previous year, maybe 22-23 लिखा है तो 22-23 में आपने कोई AMC या ऐसा कोई एक्सपेंडिचर पे किया है जो सिर्फ 1 साल के लिए, नेक्स्ट 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए है. करंट केस में हमने क्या किया है कि ये 500 रुपए 5 इयर्स के लिए थे, रेस्ट ऑफ द 5 इयर्स, तो हमको क्या करना होगा फॉर द करंट ईयर, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रैल 23 टू मार्च 24, मेरे एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा. आई कंसिडर 500 फॉर 5 इयर्स, so पर ईयर इट इज 100 रुपीज. तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये करने से मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो इन्फ्लेटेड दिख रहे हैं मेरे एसेट्स में,
वो भी कम हो जाएंगे और मेरा एक्सपेंस राइटली डेबिट हो जाएगा। ये नहीं करने से मेरे एसेट्स भी ओवरशॉट है और एक्सपेंडिचर भी। फिजिकल एसेट, फिक्स्ड एसेट्स एंड और स्टॉक आइटम्स। अब इसमें आपको लगेगा कि इसमें क्या गलत हो सकता है और क्लीन अप क्यों रिक्वायर्ड होगा। अब फिक्स्ड एसेट्स में बहुत सारे अमाउंट्स खड़े हुए हैं, स्टॉक में भी ऐसे बहुत सारे अमाउंट्स खड़े हैं, बट जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन जो हुआ है उसकी शीट से मैच करते हो तो आप रियलाइज करोगे कि वो एसेट्स या स्टॉक तो है ही नहीं। अब उस पोजीशन में अगर ये अमाउंट्स बैलेंस शीट में खड़े हैं, मतलब माय एसेट्स आर ओवरशॉट एंड माय फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट ट्रू एंड फेयर। तो ध्यान रखिए ऐसा कुछ है, मैच करिए फिजिकल स्टॉक से, फिजिकल एसेट से, and if you find there were no such assets, please clean it up, please write them off। नहीं करने पे अगेन जैसे मैंने बोला मेरे फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट, लायबिलिटीज, नेटवर्थ सब कुछ ओवर वैल्यूड है। द लास्ट वन विच आई कॉल एज अदर्स। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं छोटे छोटे रह जाते हैं, 250, 500 कुछ पॉइंट्स में रहते हैं, ये सारे एक्चुअली रिसीवेबल या पेएबल नहीं होंगे, बट अकाउंटेंट उसको क्लीन करना भूल गया। अब ये immaterial है, but it is a part of your cleaning. Remove it off because they do not require to be here, as they are not receivable, they are not payable। अब ये अमाउंट 250, 500 भी हो सकते हैं और ये इस हिसाब से 25,000 भी हो सकते हैं। अगर ये 75 में 50 करने के बाद ये 25,000 पेएबल नहीं है तो इवन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लेंट ऑफ। आप राइट ऑफ अकाउंट्स वगैरह में डाल के उसको पूरा क्लीन कर लीजिए, तभी आपके एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशंस सही होंगे, ट्रू एंड फेयर होंगे। अब यहाँ पे मैंने ये बोला कि ये सारे कुछ ऐसे एसेट्स हैं, कुछ ऐसे लायबिलिटीज हैं जहां क्लीनिंग रिक्वायर्ड है, और अगर क्लीनिंग नहीं की तो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर नहीं है, राइट? आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो इस टॉपिक रिलेटेड, प्लीज पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। Ensure that you share it with your friends, you like it, and ask them also to subscribe to my channel. Bye and take care.